Hello student, in this video we are going to start chapter number 2, random variable and discrete probability distribution. Let's start with the meaning of random variable. We have studied about random experiment, sample space and probability in the chapter of probability. हमने random experiment क्या है, sample space क्या है and what is the meaning of probability उसके बारे में chapter 1 में सीख लिया है. In this chapter we shall study random variable and discrete probability distribution. हमें इस chapter में सीखना है that what is random variable and what is discrete probability distribution. First of all we shall define random variable and then we shall understand it by illustration. सबसे पहले तो हम random variable का meaning समझते हैं और फिर उसके जो illustration है उसके बारे में information collect करेंगे. So random variable, let U be a sample space of random experiment. U जो है वो random experiment का sample space है. As we know, every element of U need not always be a number. सारे जो sample space U में element होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे numbers में ही हो. However, we wish to assign a specific number to each outcome. हम उसको number से specify कर सकते हैं, but it is not compulsory that in all the elements of sample space U are in number. A function associating a real number with each outcome of U is called random variable. Function जो भी associated है उसको real number में उसका association करना उसको बोलते हैं random variable. A function associating a real number with each outcome of U, यानी कि sample space U में जितने भी outcome है उसको अगर number के साथ आप associate करते हो तो उसको बोलते हैं random variable. It is denoted by X. Random variable is denoted by X. That is, a random variable based on sample space U is denoted by X is to sample space U and it is included in R. यानी कि X जो है वो sample space U में होता है और U जितने भी है वो सारे range जो होते हैं R उसमें included होते हैं. तो ये है random variable. For example, the number of heads in tossing an unbiased coin 3 times. अगर coin है जो unbiased उसको 3 time toss करेंगे तो उसमें heads के numbers कितने होंगे? The numbers of accident during a week in a city. City में एक week में कितने accident होते हैं उसके numbers. The weight of a person in kilogram. It means that kilogram में person के weight कितना है. The maximum temperature of a day at a particular place in Celsius. ये सारे जो है वो किसी न किसी numbers में जो है वो select किए जाते हैं, associate किए जाते हैं. तो ये है example. Now let us understand the concept of random variable by some illustration. अगर illustration के through अगर random variable के concept को अगर हम समझे तो first यहाँ पे illustration दिया है. A balanced die is tossed once. If the number observed on the die is denoted by U, then the elements of sample space U of this experiment can be shown in the notation of the set as follows. Sample space U is equals to U स्लैश U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. यानी कि यहाँ पे U कौन से हैं? अगर जो नंबर ऑब्जर्व किए जाते हैं ऑन द अपर साइड ऑफ डाई उसको डिनोट किया है विथ U. तो ऐसे कौन से नंबर होंगे अपर साइड पे? अगर जो बैलेंस डाई टॉस किया है तो बैलेंस डाई पे नंबर होते हैं 1 to 6. तो उसमें अगर ऑब्जर्वेशन किया है कि एक बार थ्रो किया तो कौन सा नंबर आया, तो इसके रिजल्ट हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6. इसी में से कोई एक नंबर अगर डाई को टॉस किया है तो उसमें आ सकते हैं. दैट इज़ U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 and 6. इफ़ वी एसोसिएट अ रियल नंबर X विथ एलिमेंट U ऑफ सैम्पल स्पेस बाय X ब्रैकेट में लिखा है U द नंबर ऑब्टेन ऑन द डाई देन वी कैन राइट. अगर यहाँ पे X जो है वो किसका सिंबल है? रैंडम वेरिएबल का सिंबल है और U है उसको हमने क्या डिनोट किया है कि द नंबर ऑब्जर्व ऑन द डाई पे जो नंबर ऑब्जर्व किया है उसको हमने डिनोट किया है विथ U. तो अगर हम रियल नंबर X के साथ एलिमेंट U को एसोसिएट करें तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? X in bracket U is equal to the number obtained on the die. Then we can write, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं X in bracket U is equals to U is equals to 1 2 3 4 5 and 6. The
Thus variable x will be a random variable assuming values 1 2 3 4 5 and 6. तो x की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी 1 2 6 assuming value of random variable. इन द अबव इलस्ट्रेशन द एलिमेंट ऑफ यू आर न्यूमेरिक. इसमें एलिमेंट जो है यू का वो न्यूमेरिक है यानी कि नंबर्स में है. नाउ वी कंसिडर इलस्ट्रेशन इन विच द एलिमेंट्स ऑफ यू आर नॉन न्यूमेरिक. अब हम ऐसा इलस्ट्रेशन समझ रहे हैं जिसमें सैम्पल स्पेस में जो नंबर्स है वो नॉन न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स ना हो, दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हो. सपोज अगर हम दूसरा इलस्ट्रेशन समझे तो दूसरा इलस्ट्रेशन है कि सपोज अ बॉक्स कंटेन्स 4 balls, 1 red, 1 blue, 1 yellow and 1 white. We denote the red ball by R, the blue ball by B, the yellow ball by Y and the white ball by W. A person draws 3 balls at a time at random from the box. The sample space associated with this experiment is, अब 4 बॉल टोटल है बॉक्स में, एक रेड है, दूसरा ब्लू है, तीसरा येलो है और चौथा जो है वो वाइट है. तो अगर उसको हम उसकी फर्स्ट लेटर से डिनोट करें, रेड फॉर आर, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लू, वाई फॉर येलो एंड डब्ल्यू फॉर वाइट. पर्सन जो है उसमें से 3 बॉल रेंडमली सिलेक्ट कर रहा है. तो उसके सैम्पल स्पेस क्या होंगे, u इज इक्वल्स टू आर बी वाई यानी कि एक रेड एक ब्लू एक येलो, आर बी डब्ल्यू एक रेड एक ब्लू एक वाइट, बी वाई डब्ल्यू एक ब्लू एक येलो एक वाइट एंड देन डब्ल्यू वाई आर वाइट येलो एंड रेड. इसके अलावा इसके कोई भी सैम्पल स्पेस नहीं होंगे, पॉसिबल आउटकम्स नहीं होंगे. सो सपोज फॉर द एलिमेंट u ऑफ u, x u is equals to the number of white ball in u, then x r b y is equals to 0, x r b w is equals to 1, x b y w is equals to 1, x w y r is equals to 1. यहाँ पे जो x u है वो क्या दिखाता है, द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन यू. तो पहला जो आउटकम था उसमें कौन कौन से बॉल सिलेक्ट हो रहे थे, एक रेड एक ब्लू एक वाइट एक येलो. तो इसमें वाइट बॉल नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट बॉल क्या आएंगे, पहले आउटकम में 0. दूसरा जो आउटकम है पॉसिबल आउटकम उसमें एक रेड एक ब्लू और एक वाइट था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट कितने हैं 1. सो यहाँ पे एक्स आर बी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि एक्स को हमने कंसिडर किया है द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन सैम्पल स्पेस यू. देन है एक्स बी वाई डब्ल्यू, इसमें भी वाइट बॉल एक है तो उसकी जो रैंडम वेरिएबल होगी वैल्यू 1. एक्स डब्ल्यू वाई आर, यहाँ पे भी वाइट बॉल एक है तो यहाँ पे भी 1. Thus random variable x assumes the values in the set 0 and 1. यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, एक तो 0 है और दूसरा क्या है 1. इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं. अगर हम x को कंसिडर कर रहे हैं द नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो द आउटकम ऑफ दिस सैम्पल स्पेस आर नॉट इन नंबर्स बट वी एसोसिएटेड देम विथ रियल नंबर्स बाय अ रैंडम वेरिएबल. ये इसका आउटकम जो है वो नंबर्स में नहीं था, किस में था, कलर्स, बॉल के जो कलर्स है उसमें था. बट हमने उसको किससे एसोसिएट किया, विथ रियल नंबर्स हमने उसको एसोसिएट किया और हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू इन द सेट 0 एंड 1. सो नेक्स्ट जो है वो है थर्ड एग्जाम्पल. Suppose the height of students in a class between 120 centimeter and 180 centimeter. If we measure the height of students of this class, then it will assume any value between 120 and 180. अगर क्लास की जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच में है, तो जो स्टूडेंट होंगे उसको अगर अज्यूम किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 120 to 180. इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हियर द सैम्पल स्पेस इज u इज इक्वल्स टू u हैश स्लैश 120 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 180. यानी कि u की जो वैल्यू है, हाइट जो है स्टूडेंट की, वो 120 से 180 के बीच में होगी. इफ़ वी डिनोट द हाइट ऑफ अ सिलेक्टेड स्टूडेंट बाय x, then x u is equals to u is equals to the height in centimeter of a selected student. Thus x becomes a random variable which will be denoted as x is equals to x 120 less than equal to x less than equal to 180. अगर उसमें से हम एक स्टूडेंट की हाइट को
एक्स डिनोट करे तो वो किस तरह से उसका जो रैंडम वेरिएबल लिखा जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 120 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 180। तो इस तरह से जो है वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हमें मिल सकती है। इन अबव एग्जाम्पल 1, 2 random variable x assumes particular countable values, whereas in examples 3 random variable x can assume any value in interval of 120 and 180. This random variable differs from the random variable in earlier two example. दो एग्जाम्पल थे उसको हम जनरली नंबर्स के साथ एसोसिएट कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या उसमें फिक्स्ड अमाउंट फिक्स वैल्यू आती थी पहले दो एग्जाम्पल जो हमने समझे उसमें। बट तीसरा जो एग्जाम्पल हमने अभी समझा उसमें इंटरवल आ रहा है, यानी कि 120 टू 180 के बीच में कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती है। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज रैंडम वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल अब हमने समझा अब तक, अब हम समझने जा रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। A random variable x which can assume a finite or countable infinite number of values in the set R of real number is called a discrete random variable. रैंडम वेरिएबल जो भी है अगर उस x की वैल्यू हम अज्यूम कर सके फिनाइट और काउंटेबल इन्फिनाइट नंबर के साथ, तो जो उसका सेट होगा R of real number is called discrete random variable. For example, birth year of a randomly selected student. अब randomly जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है उसका बर्थ ईयर वो तो काउंटेबल होगा और फिनाइट भी होगा। सेकंड इज नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इन अ बॉक्स ऑफ 6 एग्स। 6 एग्स में नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स कितने हैं वो भी काउंटेबल नंबर है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, विच इज़ फिनाइट नंबर। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बाय सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सपोज देयर इज 1 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स इन अ बॉक्स। सपोज द ब्लैक बॉल इज डिनोटेड बाय B and 2 white balls by W1 and W2. A person can play the following game by paying ₹15। सपोज कि एक जो बॉक्स है उसमें दो तरह के बॉल है, दो कलर्स के बॉल है, एक ब्लैक बॉल है और दो वाइट बॉल है। जो ब्लैक बॉल है उसको हमें डिनोट करना है B और जो दो वाइट बॉल है उसको हमें डिनोट करना है W1 एंड W2। द पर्सन प्लेइंग अ गेम बाय ₹50। वो गेम जो प्ले कर रहा है उसमें पर्सन को जो है वो ₹15 पहले पे करने हैं। द पर्सन प्लेइंग अ गेम इज आस्क्ड टू सिलेक्ट 2 balls रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। जो पर्सन है वो द पर्सन प्लेइंग अ गेम इज आस्क्ड टू सिलेक्ट 2 balls। उस पर्सन को जो है बॉक्स में से 2 बॉल जो है वो सिलेक्ट करने हैं रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट। He is paid an amount according to the color of ball selected by him as per the following condition. With replacement यानी कि जो पहले बॉल निकाल लिया है उसको वापस डाल के फिर दूसरा बॉल निकालना है। इस तरह से सिमल्टेनियसली जो है वो बॉल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द बॉक्स और अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आया उसका उस हिसाब से उसको उतनी अमाउंट पे करनी है। इफ़ वाइट बॉल इज सिलेक्टेड then ₹5 are paid for each selected white ball and if a black ball is selected then 15 are paid per black ball। अगर white ball select हो रहा है तो each white ball के लिए ₹5 पे करने हैं और अगर black ball select हो रहा है तो each black ball के लिए ₹15 पे करने हैं। If we denote the net amount earned यानी कि उसको टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड फॉर द गेम by the player corresponding to each outcome of the experiment by x, then x becomes a discrete random variable। अगर x को हम डिनोट करें अमाउंट जो है उनको नेट अमाउंट कितनी मिलेगी जो पर्सन गेम प्ले कर रहा है उसको, तो उस हिसाब से उसके नंबर्स को अगर हम x डिनोट करें तो ये जो है नंबर ऑफ x एक्सपेरिमेंट का जो टोटल आउटकम है वो हो जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। द वैल्यूज़ assumed by the variable x are denoted in the following table। जो यहाँ पे नंबर ऑफ x यानी कि जो वैल्यूज़ अज्यूम की जाती है फॉर द वेरिएबल x वो यहाँ पे एक टेबल है उसमें दर्शाया गया है। यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है उसमें 3 बॉल है, एक ब्लैक बॉल है 2 वाइट बॉल है, उसमें से
दो बॉल सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट तो जो पर्सन प्ले कर रहा है गेम उसको 15 रुपीज़ पहले तो प्ले करने हैं। अगर ब्लैक बॉल निकला तो उसको 15 रुपीज़ मिलेंगे, एंड अगर वाइट बॉल निकला तो उस पर्सन को 5 रुपीज़ पर वाइट बॉल मिलेंगे, यानी कि 2 वाइट बॉल निकले तो उनको 10 रुपीज़ मिलेगा। और फर्स्ट यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि उसको एट द टाइम ऑफ प्लेइंग द गेम 15 रुपीज़ पहले से पे करने हैं, फिर उसको जो है वो उस जो बॉल निकला उस हिसाब से उसको रुपीज़ मिलेंगे। तो सपोज़ ब्लैक बॉल निकला एक तो उसको 15 रुपीज़ मिलेंगे, और वाइट बॉल निकले तो एक वाइट बॉल का 5 रुपीज़, उस हिसाब से उसको रुपीज़ जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे टेबल दिया है, उसमें आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कौन कौन से आउटकम पॉसिबल है, कौन कौन से बॉल जो है वो निकल सकते हैं वो। फिर दूसरा दिया है द अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन बाय प्लेइंग द गेम। तीसरा दिया है अमाउंट पेड टू प्ले, एंड लास्ट में द वैल्यू ऑफ एक्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे टेबल दिया है, फर्स्ट लिखा है आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इवेंट। अब 3 बॉल में से 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 3 बॉल कौन कौन से, एक ब्लैक बॉल है, वाइट 1 एंड वाइट 2। तो इससे रिलेटेड 2 बॉल अगर सिलेक्ट करने हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। या दोनों वाइट बॉल होंगे, या दोनों पहले W1 निकलेगा फिर W1 निकल सकता है, क्योंकि ये जो रिप्लेसमेंट है वो विथ रिप्लेसमेंट सिलेक्शन करना है। विथ रिप्लेसमेंट यानी कि पहले अगर वाइट बॉल निकाल लिया वापस से डाल के फिर दूसरा बॉल सिलेक्ट करना है, तो दोनों W1 हो सकते हैं, W1 W2 हो सकते हैं, W1 B1 हो सकते हैं, W2 W1 हो सकते हैं, W2 W2, यानी कि पहली बार में भी दूसरा वाइट बॉल निकला, दूसरी बार में भी दूसरा वाइट बॉल निकला, फिर W2 W1 B1 W1 B1 W2 एंड B1 B1। तो ये है पॉसिबल आउटकम्स जो कि विथ रिप्लेसमेंट है, यानी कि एक बार वापस डाल दिया बॉल दूसरी बार भी सिलेक्ट हो सकता है। तो ऐसे टोटल यहाँ पे 9 आउटकम्स जो है वो आपको मिलेंगे। फिर है द अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन बाय प्लेइंग द गेम। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वाइट बॉल निकला तो उस पर्सन को एक वाइट बॉल के 5 रुपीज़ के हिसाब से मिलेंगे। यहाँ पे 2 वाइट बॉल निकल रहे हैं तो 5 + 5, सो द पर्सन रिसीविंग 10 रुपीज़। फिर दोनों वाइट बॉल तो 5 + 5 10, एक वाइट एक ब्लैक, तो वाइट के 5 रुपीज़ मिलेंगे, ब्लैक के 15 रुपीज़ मिलेंगे तो 20। फिर दोनों वाइट, सो 5 + 5 10, फिर दोनों वाइट 5 + 5 10, फिर एक वाइट एक ब्लैक, सो 5 + 15 20, फिर एक ब्लैक एक वाइट 15 + 5 20, फिर एक ब्लैक एक वाइट 15 + 5 20 एंड बोथ ब्लैक, सो 15 + 15 30। तो ये जो है अमाउंट वो पर्सन को मिलेगी। अब उसको पे कितनी करनी है, जब गेम की स्टार्टिंग होगी तो उसको 15 रुपीज़ गेम प्ले करने के लिए पे करनी है। तो यहाँ पे सारे में 15 रुपीज़ आएंगे। अब जो लास्ट कॉलम है वो है द वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, द अमाउंट अर्न बाय द पर्सन। वैल्यू ऑफ एक्स है कि अ पर्सन जो गेम प्ले कर रहा है उसको कितनी अमाउंट मिलने वाली है। तो लास्ट कॉलम में है x = अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन अर्न बाय द पर्सन। अब वो कितनी अर्न कर पाएगा, देखो यहाँ पे 15 उसको गेम खेलते समय देनी है और 10 रुपीज़ उसको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 5 रुपीज़ और उसको देने हैं। 10 - 15 जो उसको मिलेंगे और जो उसको पे करने हैं, तो यहाँ पे -5 क्यों है, क्योंकि अब उसको ज़्यादा 5 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे। यहाँ पे 5 + 5 10 और उसको मिल रहे हैं 10, पे करने हैं 15, तो -5 यानी कि 5 अभी भी उसको देने हैं। यहाँ पे 20 मिल रहे हैं, पे करने हैं 15, यानी कि यहाँ पे वो जो है अमाउंट अर्न कर सकेगा 5 रुपीज़। समझ रहे हो किस तरह से, ये उसको मिल रही है, ये उसको पे करनी है, तो ये जो पे करनी है वो ज़्यादा है और जो मिल रही है वो कम है, इसलिए माइनस में आंसर है। यहाँ पे जो है 20 - 15 5, ये प्लस में है क्योंकि ये उसके पास अब बचेगा। 10 - 15 -5, इसमें वो 5 रुपीज़ जो है वो गवा देंगे। 10 - 15 -5, 20 - 15 5 रुपीज़ उसको मिलेंगे, ही अर्न 5 रुपीज़। उसके बाद है 20 - 15, सो 5 रुपीज़, 20 - 15 5, एंड उसको 30 मिल रहे हैं, 15 ही पे करने, तो वो कमा सकता है 15 रुपीज़। आर यू गेटिंग क्लियर।
तो यहाँ पे जो है दस द रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम्स द वैल्यू -5, 5 एंड 15 ओनली। इसमें से कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? -5 आ रहा है उसका रिजल्ट, 5 आ रहा है और 15, ये 3 ही रिजल्ट जो है उसके आउटकम में आ रहे हैं। तो ये दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इज़ फिनाइट। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो टोटल नंबर है वो फिनाइट है, यानी कि लिमिटेड है। 5, -5 एंड 15, यही 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसके जो रिजल्ट है वो क्या है? फिनाइट है। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने अभी टेबल समझा है उसके नीचे एक दूसरा एग्जाम्पल है, जो कि एक कॉइन जो है वो टॉस किया है और उसके ट्रायल्स कितने हैं उसको अज्यूम किया है। उसको आप घर पे ज़रूर रीड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।